ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਤਿਹ, ਇਹ ਮਾਣ, ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੰਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਭਿਖਾਰੀ ਟਾਈਪ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, 8 ਪੈਰ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਫੜ ਸਕੇਗਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਸਾਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो। गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात। नानक चाहो ए हो, नानक चाहो ए हो। गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात। जहाँ खिमा तै आप, जहाँ खिमा तै आप। जहाँ खिमा तै आप, जहाँ खिमा तै आप। खिमा तै आप। वाहिगुरु वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਘਰ ਦਏ ਵਸਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਟਿਕਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਪਿਆ ਸਭ ਨੇ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਰਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂ ਚੱਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਈ ਸੰਗਤ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਰੱਖਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰੰਗਿਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਪਦਾ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਕੰਨ, ਹੱਥ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਛੂ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸੀ, ਭ੍ਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਟ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਮਿਟਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ।
आठ पहर गुण गाई। अठां पहर उन्हां दे गुण गाउणे चाहीदे हन, प्रभु दे गुण। गुर पूरे ते पाई, गुरु पूरे नाल ये अवस्था प्राप्त होंदी है, आठ पैर गाण वाले। रहाओ प्रभ की अकथ कहानी, ये प्रभु दी अकथ की कहानी है जड़ी कही नहीं जा सकती। जन बोले अमृत बाणी, जड़े जन हन वो अमृत बाणी बोलते हैं, या जिन्होंने हरिजन कहा जाता है, हरि दे भगत प्यारे, वो अमृत बाणी बोलते हैं, मूँह तो बाणी ही बोलते हैं। नानक दास वखाणी, ये गुरु नानक साहब ने दास बन के ये गल वखा दी। गुर पूरे ते जानी, पूरे गुरु तो ये हुण गल सानू पता लग गई, जान लई असी कि ये जड़े भ्रम और संशय मिट जाते हैं, ये नाम नाल मिटते हैं। वरना बंदा कल्पिया रहिंदा है, चिंता दे विच बैठा रहिंदा है हर वक्त। जे नाम तो विछड़ेगा हर विसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापे जाको ओट तुहारी। ये भी हुक्मनामा है जी, बाणी दे बोल हैं। हरि तो विसरन नाल ना सारी खुआरियां खड़ी हैं तुहाडे अगे। जरा जा हरि नूं हटाओ अपनी जिंदगी तो, संगत छड़ दो, नाम जपना बंद कर दो, तुहाडा मन कल्पन ही चला जाए, खुआर होने शुरू हो जाओगे। अंदर तुहाडे अलग अलग तरीके दे काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार ये पैदा होने शुरू हो जाएंगे। कलयुग की फौजां तुहानूं घेरा पा लेगी कि हुण ये मेरा सेवक बन गया, हुण मौका चंगा है, इनू काबू कर लो, ये आ जाएगा हाथ च। वो तो तैयार बैठी हैं फौजां। कलयुग कहंदा कोई करे तो सही, जरा जी अनगेली करे, प्रभु तो विसरन की कोशिश तो करे। मैं तो आया बस उहदे हिरदे विच आके बह गया। अज बहुत ही प्यारा विशा रखने की चेष्टा की जाएगी, गुरु कृपा करे। जहाँ खिमा तै आप, कहते इन्ना वड्डा गुण है, ये गुरबाणी की पंक्तियां हैं। खिमा ये मंग लो, मैं तो कहना मेरे वास्ते भी मंग लो। है अरदास अज ऐसी करो, ये विशा सुन के तुसी भी हैरान हो जाओगे कि खिमा का दान इन्ना वड्डा दान, इन्ना कुछ दे जाएगा सानू जिंदगी च। गुरु जी ने गल ही मुकाती, जहां खिमा तै आप, कहते जिथे खिमा होएगी उधर मैं आप खड़ जावांगा। आखो सतनाम श्री वाह। ये गल शुरुआत करते हाँ गुरु अर्जन देव जी के जीवन तो ही। आप जी नूं सब नूं पता है, पृथ्वी जो गुरु जी का भरा सी सक्का वड्डा, गुरु अर्जन देव जी छोटे सन, पर गुरु घर की गद्दी दे लालच विच कह लो, लोभ विच पृथ्वी का मन सड़न और कुड़न लग गया सी। वो ईरखालू होके संगत नूं भड़काना शुरू करता सी। संगत की माया भेटा पृथ्वी चंद ने अपने कोल रखवानी शुरू कराती सी। ते गुरु अर्जन देव जी के प्रति उहदे मन विच रोष सी, गुस्सा सी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज मेरे तो छोटे हैं, ते गुरु रामदास जी इन्हां नूं बड़ा प्यार करते हैं, हक मेरा बनता है, मैं वड्डा। गुरु घर की जिहड़ी सेवा गद्दी है, गुरु गद्दी है, वो तो मैनूं मिलनी चाहिए किसी भी तरह। मैं तेनों हथिया लांगा, भावें जोर नाल चाहे ईरखिया नाल, मैनू मतलब है गद्दी नाल, मैनू इहदे दिल नाल कुछ नहीं लेना। मेरा छोटा भरा है, मैनू की लेना। मैनू गुरु अर्जन देव जी नाल वैर कमानी है, वैर बस। वैर आंदी ही ना किसी के प्रति, बस काम दूजा शुरू हो जाता। आखो सतनाम श्री वाह। ये जिहड़ी बंदगी है ना, थोड़ी बहुत असीं पुण्य कमाई होंदी है, ये सारे जाने शुरू हो जाते हैं। सच्ची गल्लां ने, इस साइड तो ना तुहाडे गए
एक पासों भगती कर रहे हो, दूजे पासों सारे जा रहे हैं, परा जा रहे। ये इन्नी माड़ी है ईर्खा। जहां खिमाते आप पृथ्वी चंद ईर्खा कर करके मंजे तक पै गया सी, बीमार हो गया, बीमार। गुरु अर्जन देव जी ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ किसी ने कि ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ बीमार है, तड़पता है मंजे ਤੇ। गुरु अर्जन देव जी दस की बोल सन साडे गुरु दे, देखो, राख लियो भाई मेरे को अपने खसम भरोसा। मैनू अपने खसम ते भरोसा है, हे सतगुरु मेरे भरा नू रख लो। आखो सतनाम श्री वाह। यानी इस पंक्तियों में की साबित होता है, जहां खिमा तय आप। गुरु अर्जन देव जी उन्होंने माफ करता, इन्ने वैर विरोध लड़ाई झगड़े करता सी, तां भी कहंदे मेरे भरा नू रख लो। प्रभु अगे अरदास बेनती करन लगे। गुरबाणी अंदर दर्ज है पूरा हुक्मनामा साहब, राख लियो भाई मेरे को प्रभ आगे अरदास। ते साडे गुरुआं ने सानू ये सिखाया है, ताई तो गुरु दे मन विच हिरदे विच नाम वसिया, प्रभु प्रगट हो गए। जहां खिमात है आप। एक बारी ना एक संत सी, वो अज किश्ती दे विच बह गए हैं, नाल 4-5 मुंडे भी हैं, नौजवान मुंडे, जिन्होंने अपनी जवानी का जोश होंदा है, उहदे अंदर वो बह के जाते हैं। कई बार उन्होंने संता गुरसिखां का आदर भी नहीं करना आंदा। वो अज नाव के अंदर साधु बैठे हैं, पूर्ण साधु, उन्होंने सिर ते केश नहीं सी, वाल कईयां दे नहीं होंदे, नहीं रखते वाल। वो जो बैठे तो मुंडियां नूं शरारत सुझी, कहंदे टाइम पास करनी है महापुरुषों नाल ही, चलो मस्करी करते हैं। महापुरुषों नाल मस्करी करन लगे, कहंदे देखो कितना सोहना चांद निकल आया है। आखो सतनाम श्री वाह। उन्हां दे गंजेपन नूं चांद का दर्जा दे रहे हैं। कहंदे इनू वजा के भी देख लो। एक बोलिया मुंडा कि खाली वजदा है कि खड़कदा भी है ढोल, ढोल नूं वजा के देखो। महापुरुषों नूं पता सी ये मेरे वाल गल्लां करते हैं, इशारा पता ही लग जाता है दूजे नूं। हुण महापुरुष चुप रहे, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। हुण महापुरुष थोड़ी अगे होया है, मस्करियां बंद नहीं हो रही। संता महापुरुषों ने मस्करियां करनी ना, कुल डोबन की रीत ने, कुल डुब जाती ने। कुलों का उधार नहीं होता, फिर कुलों का भी पिछे बहुत बुरा हाल हो जाता है। कुल डोबन की रीत ने उन्होंने किसी महापुरुष का मजाक होना, मस्करियां होना नहीं करना चाहिए। हुण वो नाव ना अगे थोड़ी अगे हुई नदी के विचकार ते एकदम ही तूफान आने शुरू हो गए, उपरों बारिश पैनी, तूफान। वो हुण मुंडे मस्करियां छड़ के घबराहट पै गई। संत अडोल बैठे नाम जप रहे, उन्होंने कोई टेंशन नहीं कि नाव डुबदी है, डुबे। वो चढ़े 4-5 मस्करी वाले दोस्त सी, वो लड़न लगे, कहते आपस कहते हैं कित्थे बह गए, असीं उत्थे गए, अस ते साडी जान नूं बनाई पाई। समाधि विच महापुरुषों की सीधी रब नाल गल्लां हो रही। रब कहता है महापुरुषो अज मैं इन्हों सज़ा देनी देनी है सारिਆਂ ਨੂੰ। इन्होंने तुहाडे नाल मजाक किए हैं, बहुत बुरा किया है। अज मैं इन्हों 4-5 नूं डुबो देना नदी विच, नाव उलट जाएगी भाव। पर कहते तुसीं रसीए हो नाम दे, तुहानूं कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा, तुसीं उसी तरह जीवित रहोगे। आखो सतनाम श्री वाह। हुण महापुरुष जहां खिमात है आप, क्योंकि विषय यही चल रहा है। महापुरुषों ने अरदास की उसी वक्त रब दे चरणों विच, हे प्रभु जी जे अगर तुसी नाराज हो ना
इन्हां बच्चियां नाल बिल्कुल नाराज़गी ना रखना। इन्हां दा कोई कसूर नहीं ने, इन्हां दी अकल ही इन्नी है, रब ने जिन्नी को तुसी सोची दिती है उन्नी जी गल्लां करदे है, उस सोच तो सोच रहे हैं। इन्हां दा ज्ञान घट है, ये उच्ची सोच वाले होंदे ते गल करदे ही ना। इन्हां नूं ज्ञान हुंदा ना ते इन्नी घटिया गल ना करदे। कई कहंदे ना बहुत घटिया गल कर गया, मौके ते घटिया गल करदे ही ना, उच्ची गल करदा। समझ नहीं ना, तरस आ गया। कहंदे महापुरुषां ने अरदास की गुरु चरनां विच, अज ये तूफान रोक दो, ये बेड़ा पार लगा दो, इन्हां विचों एक भी मुंडा मरना नहीं चाहिए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जहां खिमा ते आप। उसी वक्त वो जड़ा तूफान थम गया जी, थम गया। रब भी खुश हो गया कि मेरा भगत कितनी उच्ची अवस्था दा है, और पंजों किनारे ते आ गए और उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया, रियलाइजन हो गई। बिना के महापुरुषों ने जताता उन्होंने कि, क्योंकि वो देखते सी अरदासां करते, सब देखते सी मुंडे। जदों किनारा आया तो मुंडिया ने हाथ जोड़ के महापुरुषों ने कहा, महापुरुषो असी बड़े भुलनहार हाँ, असी तुहाडा बड़ा हिरदा दुखाया, बहुत दिल दुखाया, बहुत ज़्यादा असी नीच बंदे हाँ, असी के करता है काम। वो तो शुक्र है तुहाडे दिल विच परोपकार छुपिया सी, अज साडी सारियां दी जान बच गई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वरना की हुंदा। जहां खिमा ते आप। इसी विषय नूं होर अगे करते हुए महाराजा रणजीत सिंह के जीवन की कथा लैने जी। महाराजे दी, महाराजा रणजीत सिंह आप जी नूं पता है सिख राज का शासक होया है, खालसा दा, और बहुत ही चंगा राजा सी रणजीत सिंह। दया भावना वाला सी, गुरुआं संतां महापुरुषां पीरां दा सत्कार करने वाला राजे सन। और एक बारी हाथी की सवारी ते जा रहे, नाल काफिला है, उत्ते कुछ छोटे जे बच्चे 10-12 साल के न्याणे उत्ते खेल खेडदे हन। सामने बेरी का पेड़ है, थल्लों वट्टे चक चक के, पत्थर चुक चुक के मारते हैं बेरी। बेरी की उचाई चंगी सी। अचानक ही काफिला विच आ गया ते वट्टा सीधा महाराजे रणजीत सिंह के खोपड़ी ते जाके वजया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो खूनो खून हो गया। राजा रणजीत सिंह उत्थे ही उदी मरम पट्टी की गई ते कुछ सैनिकों ने फटाफट वो पंजों न्याणे फड़ ले, अरेस्ट कर लिते गए। महाराजे ने हुक्म किया, इन्हां दे माँ प्यो नूं सद्दा ला दो, कल कचहरी के अंदर सारे बच्चे लेके पेश होने। अगले दिन का समा रखा गया। कचहरी सज गई, महाराजा आप बैठा है कचहरी, सारी गल सुन रहे। एक बच्चे छोटी माँ बच्चे माँ की आई, अगे होके कहती मेरा बच्चा बहुत छोटा है रणजीत सिंह जी, मेरे ऊपर दया करो। मेरे बच्चे का निशाना इन्ना पक्का नहीं, मेरे बच्चे च इन्नी जान नहीं कि तुहाडे खोपड़ी तक वट्टा भी मार सके। मेरा बच्चा इन्हां विच हैगा जरूर है, पर उदा कसूर कोई नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अपनी दलील रख ली। दूजी माँ कहती मेरा बच्चा ये इन्नी माड़ी हरकत नहीं कर सकता। महाराजा जी हो सकता इन्हें चो कोई बच्चा होर होवे, पर मेरे बच्चे के अंदर बहुत साऊपन है, बड़ा शरीफ है, वो इन्नी ओछी हरकत नहीं कर सकता, इस करके दया की जाए, मेरे बच्चे को छड़ दिता जाए। कुल मिला के 5-6 जड़े मावां खड़ियां सी बच्चियां दी, उन्होंने अपनी अपनी दलील पेश की राजे अगे। हुण सुनने वाली गल है, महाराजा रणजीत सिंह ने बच्चियां वाल इशारा किया, बच्चिओ मैनू तुसी यह दसना करो, ये बेरी नूं तुसी पत्थर मारदे सी वट्टे, ये क्यों मारदे सी? कहंदे बेरी सानू फल दिंदी है, असी मिठा मिठा फल खाने हैं बच्चे मिल के। महाराजा रणजीत सिंह सोची पै गया, अपने सैनापतियों नूं कहंदा ये जड़ वस्तु है बेरी, ये बोल भी नहीं सकती, ये परोपकार कर रही है,
ये इनू पत्थर मारो, अगों फल दे रही है, मिठा मिठा फल खाण दे रही है। कहते मैं तो बोल भी सकता हाँ, मैं तो मैनू सोच भी दी है, रब ने सोचन शक्ति भी दी है, और मैं इन मासूम बच्चियां नू सजा देन नू तैयार सी। आखो सतनाम श्री वाहे। मेरा हक नहीं बनता ये रब प्रभु दे बच्चियां नू सजा देना। एक बेरी परोपकार कमारीए, मैं क्यों ना कमावा। ये सारे बच्चों नू छड्ड दिता जावे। होर ते होर इतिहास के अंदर गल आंदी है, राजे ने ऐलान लाता ये 5 बच्चियां दे नाम, हर बच्चे दे नाम 2-2 पिंड फ्री इहदे नाम लगा दिते जाना। आखो सतनाम श्री वाह। कहंदे मेरे हिस्से चो ना 2-2 पिंड इन्हां नू दे दो, दान दे दो भूमि, कोई गल नहीं, वड्डा दिल है मेरा। गरीबां दे बच्चे कल नू असीसां देणगे, इन्हां दी असीसां ही ते मेरे बच्चियां नू लगनी है। जे मैं इन्हां दी विशिश लांगा, किसी गरीब बच्चे की हैल्प करांगा, वो मैनू रोएगा थोड़ा ना, असीस देगा। दिलों असीस लगती है, दिलों गरीब की। और ये भी गल है, जे गरीब रो पिया ना, उसकी पुकार भी रब सुन लैंदा। दोनों गल्लां ने। जे गरीब असीस दे दे तो समझो तुहानू फलीभूत होएगी। जे गरीब रो पिया, उसकी अखां च आंसू आ गए तुहाडे करके, फिर परमात्मा नू भी आना पै जांदा। आखो सतनाम श्री वाह। ये खिमा है ना, बड़ा वड्डा गुण ने। ये देख लो विशा ही कितना प्यारा लग रहा होना जेडे सुनते पे ध्यान नाल। जां खिमा ते आप, ये शब्द बोलने नाल ही मन नू शांति पै जाती है कि कितना वड्डा गुण है किसी नू माफ़ कर देना। इस तो वड्डा परोपकार नहीं ने। एक महापुरुषां नाल मेरी भेटा हुंदी सी, मैं उन्हां दा रोजाना नित्तां दा संगी सी। भगत जी कहंदे सी उन्हां नित्तां दा। मैं गुरु किरपा नाल जद तक उन्हां दे सीगा शरीर, मैं उन्हां दे घर जाना। एक दिन बचन विलास हो गए, संगत बैठी, 100-200 बंदा बैठा सी। भगत मामा जी उन्हां नूं किया जांदा सी, सब दे सांझे मामा जी सी। सब दे कहते जो हर का प्यारा तो सबना का प्यारा। सब तो वड्डी गल है कि जड़ी संगत नाम पा देना, उन्हां दा नाम ही संगत ने पाया सी जी। संगत कमाल दी गल, संगत ने उन्हां दा नामकरण किया सी। भगत जी वो वचन करते, मैं ध्यान नाल सुनदा पिया उन्हां दी गल। कहते सब तो वड्डा गुण है कि किसी नू माफ़ कर देना। भगत जी कहते जे किसी नू कोई वैर नहीं रखता ना, ईरखा नहीं रखता, उहदे बारे माड़े नहीं सोचता, उहदी अपनी बुराइयां खत्म हो जाती है। सगों उहदे गुण है ना, जो जड़ा बंदे दे गुण होणगे वो सारे तुहाडे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। आखो सतनाम श्री वाह। होर की दस कहते कोई ऐसे गुण होण जो तुहाडे च ना होण। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई परोपकारी हो, बड़ा वड्डा दानी होवे, या कोई बड़ा वड्डा नाम दा रसिया होवे, उन्होंने बाणी दी सोझी होवे, उन्होंने गुरबाणी दी कंठ होवे, वो सारे गुण तुहाडे विच एडोप्ट हो जाणगे। ऐटोमैटिक यह सिलसिला बनिया है। इन्ना वड्डा गुण ने। मैं सुन के हैरान हो गया। ये तो विधि दसती उन्होंने जीवन जीन दी कि किसी का गुण लेना है, उन्होंने पहला तो माफ़ कर दो। जे उन्हें कसूर भी किया है तुहाडे सामने, तुहानू कुछ किया है, माफ़ी दे दो, कोई गल नहीं। की हो जाएगा, की फर्क पेगा? 2 बोल ही बोलनी, तुहाडा मन भी शांत, उहदा भी शांत, की हो जाएगा? की वड्डी कोई तूफान आ गया, कोई तुहाडी इज्जत घट गई है कहण नाल? कुछ नहीं फर्क पैंदा। ये तुहाडी ना अंदर दी ईगो है, ईगो करके इंसान एक दूजे अगे झुकदा नहीं। यही तो मारनी है। गुरबाणी ये तो कहती है कि नाम ता ही वसेगा जे ईगो मारेगा। सारा झगड़ा ही ईगो का है आजकल। भाई जहाँ खिमात है आप, अज इस विषय की अरदास सारे अपनी अपनी करके जाना। ये गुण आ गया तो समझो सानू मुक्ति का दरवाजा खुल जाएगा। आखो सतनाम श्री वाह। सब तो वड्डा गुण अज धार के जाओ जीवन अंदर।
ਜਾਂ ਖਿਮਾ ਤੈ ਆਪ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲੋ ਜਦ ਤੱਕ ਵਸ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।